हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और मैं हूं आपका मेंटर डॉक्टर मंदाकिनी सोरेन। तो आइए स्टार्ट करें। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? The basic and essential activities performed by a living organism to sustain and maintain life is called life processes. तो जितना भी बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, तो उसको मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस से गुजरते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस। तो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep. So this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. So what are the different types of life processes that are being performed by an organism? So आइए देखते हैं कि वो क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए। तो वो 4 प्रकार के होते हैं। वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। देखिए, वो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस हम सभी को बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है in order to prevent damage and breakdown where energy is needed for every one of them. So this energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, so which we call food, to the inside, and a process that we commonly call nutrition. So nutrition क्या होता है? It is the process of obtaining and utilization of food. जो कि है वो प्रोसेस हम लोग जब फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको ऑब्टेन करने के बाद कैसे अपने बॉडी में यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है? वो है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जितना हम लोग फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसी फूड को हमारे सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी के अंदर में जो सेल है वहाँ पे जाके ब्रेकडाउन होते हैं, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। So the outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining life structures, as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most important chemical means to break down molecules. So for this, many organisms use oxygen source from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call cell respiration. So next आता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्ट करना मतलब
एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को भेजना. So transportation is what? Process of transfer of useful and non-useful substances from one part of the body to another. Next आता है excretion. So excretion is what? The process of removal of metabolic waste. So जितना कि हमारे सेल के अंदर जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी यूज करते हैं, जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है वो, या फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है वो हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं. तो उसी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. Now, foods that we take are carbon based, that is glucose. Foods that we consume are being made by plants, and plants make their food by the process of photosynthesis, and that food is made in the form of glucose, that is carbon based C6H12O6. देखिए जितना कि फूड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कार्बन बेस्ड होता है, और कार्बन बेस्ड मतलब ग्लूकोज कंटेंट होता है. और फूड्स दैट वी कंज्यूम आर बीइंग मेड बाय प्लांट्स, और जो फूड्स हम कंज्यूम करते हैं वो प्लांट बेस्ड होता है. और वो प्लांट्स क्या कहते हैं? वो प्लांट्स अपने ही वो प्लांट्स क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और वो खाना बनाने का प्रोसेस के बाद क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है, और उसी ग्लूकोज को हम बोलते हैं कार्बन बेस्ड. और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. अभी देखिए ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों के क्षेत्र में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होगा? वही नोज या फिर लंग्स होंगे. सो प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और किसके थ्रू? वो गैसियस एक्सचेंज होते हैं स्टोमेटा के थ्रू. और स्टोमेटा क्या है? जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं लीव्स में, उसी को स्टोमेटा बोलते हैं. वैसे ही एमीबा जो कि एक प्रोटिस्ट है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, और वो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में. वो क्या करते हैं? वो भी हमारे जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. पर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हमारे जैसे नोज, लंग्स या स्टोमेटा ये सब नहीं होता है, पर सिर्फ और सिर्फ वो जो साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है एमीबा के क्षेत्र में. अभी नेक्स्ट जाते हैं. देखिए न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन मतलब जितना कि फूड्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं बॉडी के लिए, और वो ही न्यूट्रिशन क्या है? दो प्रकार के होते हैं. एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So what is autotrophic nutrition? The type of nutrition in which organisms prepare their own food. Okay? और इसी organisms को क्या बोलते हैं? Autotrophs बोलते हैं. ठीक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब उसी टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना खाना बनाते हैं, और उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. तो फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? उसी टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं
फूड के लिए, और उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब फोटो का मतलब आप लोगों को पता ही चल गया होगा, फोटो मतलब लाइट और कीमो मतलब केमिकल्स। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी टू मेक फूड। देखिए, जितना कि ऑर्गेनिज्म है उनको लाइट एनर्जी चाहिए होता है अपने खाने को बनाने के लिए। तो लाइट एनर्जी मतलब हमको पता ही चल गया होगा, जो कि सनलाइट के बारे में वो लोग बोल रहे हैं। सो बेसिकली एग्जाम्पल होगा क्या? ग्रीन प्लांट्स जो कि सनलाइट के थ्रू और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो खाना बनाते हैं। और एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि वाटर बॉडी में फ्लोट करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्रीन कलर टाइप का होगा। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करते हैं, ये भी सनलाइट के हेल्प से फूड बनाते हैं। सो ये होगा फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है देखिए कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल यूज करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। तो इसका एग्जांपल होगा सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अभी जैसे कि देखिए कुछ बैक्टीरिया होता है। देखिए मान लीजिए सॉइल में एक बैक्टीरिया है, और वहाँ पे सॉइल में हम लोगों को क्या मिलेगा? एमोनिया भी मिलेगा, नाइट्रेट भी मिलेगा, नाइट्राइट भी मिलेगा। सो ये सब क्या है? ये सब होता है केमिकल्स। सो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया नाइट्रेट और एमोनिया ये सब क्या करेंगे? केमिकल्स को अपने बॉडी में लेके फिर फूड बनाएंगे। ठीक है, देखिए नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया। ठीक है, अभी हम जाते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। देखिए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमें पता है कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड को बनाने के लिए। अभी ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वाला सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, थर्ड वाला पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फीड करते हैं फूड को होलली, कंप्लीटली। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म में? फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी। जो फूड है वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। और इनका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया है, ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने बोला है। फिर आप बोल सकते हैं कि काउ, डॉग, फिर एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, जो कि एमीबा भी मैंने दिया है, पैरामीशियम एटसेट्रा। The next one is saprotrophic nutrition। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म वो फिट करेंगे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में।
जो कि मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, और उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड, अंदर नहीं, फूड क्या होगा, आउटसाइड, बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो एब्जॉर्ब होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है ब्रेड मोल, और जिसको राइजोपस भी बोलते हैं, जो कि एक फंगस है। फिर ईस्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, और मशरूम आप लोगों ने शायद खाया भी होगा, यस ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म वो फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उस ऑर्गेनिज्म जहाँ पे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नहीं मारते हैं, नहीं मार के वो लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग इन और इनसाइड द होस्ट। ओके, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर भी रह के या अंदर भी रह के क्या करते हैं, जितना कि न्यूट्रिशन उस होस्ट बॉडी से लेके अपने बॉडी तक पहुंचाते हैं, और उसको मारते भी नहीं है, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल है लीच, लाइस, हेड लाइस, फिर कस्कटा जो कि प्लांट है, ठीक है, शायद ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के बारे में ही बोल रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहे हैं। अभी देखिए फोटोसिंथेसिस ऐसे ही प्रोसेस नहीं, इतना कि सिंपल प्रोसेस नहीं है कि मतलब ऐसे ही फूड बना देंगे प्लांट्स, ठीक है। उसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, और मतलब इसका मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। और फर्स्टली एकदम फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी देखिए क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, देखिए ये है लीफ, और लीफ इज द मेन साइट, आप बोल सकते हैं लीफ इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जहाँ में मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और लीफ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी होते हैं, जहाँ जो कि हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन भी इसी पोर्स से होते हैं। फिर देखिए लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड लीफ में पाए जाने वाले हैं, और जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और क्लोरोफिल क्या है, वो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी देखिए जो सनलाइट यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा कि एब्जॉर्ब करेंगे वो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होगा, और वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ photosynthesis. Next step is what? Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. So conversion of light energy into chemical energy. So ये जो light energy है वो chemical energy में क्या होगा, convert हो जाएंगे। So देखिए ये सबके साथ क्लियर है कि energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be transformed from one form to another. Is it clear to each and every one of you? Okay.
अभी देखिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस एक्सचेंज जो कि स्टोमेटा से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ लेते हैं या प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर गए हैं और जो वाटर है, वाटर आएंगे कहाँ से? सॉइल से, थ्रू द रूट्स। और अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो रिएक्शन करके क्या होगा, सनलाइट रिएक्शन करेंगे, पर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, अभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी क्या होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से निकलेंगे, अभी वो बोन फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, और बोन फॉर्म करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, ग्लूकोज बनाएंगे। फिर वो जो ऑक्सीजन जो कि रह गया, वो ऑक्सीजन क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज हो जाएंगे। कैसे फॉर्म में? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। और some amount of water is also going to be released, and this is the equation of photosynthesis, reaction of photosynthesis। अभी देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। वही जो मैंने बोला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बोन फॉर्म करके हाइड्रोजन के साथ बोन फॉर्म करके जो ग्लूकोज फॉर्म करके, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और इस ग्लूकोज को फूड के प्रोसेस में, फूड के फॉर्म में प्लांट्स लेंगे, और जो रह गया, जो बाकी रह गया, वो फूड क्या करेंगे? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, सो ये स्टार्च कहाँ पे स्टोर होंगे? ये स्टार्च स्टोर होंगे वो जो सेल के अंदर पाए जाने वैक्यूल्स है, वहां पे वो स्टार्च स्टोर हो गए। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट में। देखिए, अभी आता है स्टोमेटा। सो व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या है, वो टाइनी और माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप में ये देखने वाले पोर्स हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। पर कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ लीव्स में, लीफ के सरफेस में। ठीक है, अभी देखिए, स्टोमेटा का फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? स्टोमेटा, functions of stomata are of two functions stomata performs. One is the exchange of gases and another one is transpiration. So exchange of gases, that is intake of carbon dioxide and release of oxygen, and transpiration means what? Loss of water. Okay, loss of water from the plant body, that is called transpiration. Now see, what are guard cells? So these are kidney shaped cells surrounding the stomata. देखिए, ये है स्टोमेटल पोर और या फिर स्टोमेटा, और ये जो किडनी शेप सेल्स आपको दिख रहे हैं दोनों पार्ट्स में, एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड वाला। सो ये दोनों कंबाइन करके जो पोर फॉर्म करेंगे वो है स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर। अभी देखिए, इसी सेल्स को क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए, गार्ड सेल्स कैसे काम करते हैं? ठीक है, गार्ड सेल्स कैसे काम करते हैं या कैसे स्टोमेटा को हेल्प करते हैं? देखिए, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर घुसेंगे या एंट्री होंगे, तो क्या होगा? गार्ड सेल्स विल स्वेल, फॉर विच द स्टोमेटल पोर विल ओपन।
ये है क्या, स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। और देखिए जब वाटर जो कि बाहर निकलेंगे, जो बाहर निकलेंगे, ठीक है, जो बाहर निकलेंगे वो क्या होगा, वाटर जब बाहर निकलेंगे तो गार्ड सेल क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक मतलब वो सिकुड़ जाएगा और क्या होगा, फिर वो जो स्टोमेटल पोर वो क्लोज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये होगा गार्ड सेल्स का मतलब फंक्शन, ठीक है। अभी देखिए फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स अदर देन डेजर्ट प्लांट्स, हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है उस प्लांट्स में डे टाइम में और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। और अभी क्या है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स, और डेजर्ट प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मैंने एक राफ डायग्राम बनाया है जो कि एक कैक्टस का है, जो एक ज़ेरोफाइट है, आपको डेजर्ट में मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ज़ेरोफाइट्स में या कैक्टस में क्या होगा, ये दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए due to lack of water and high temperature conditions in the deserts, if the xerophytes open their stomata, then all the water content present inside the plants will lose the water. For this reason, those plants open their stomata at night and closes during daytime. अभी देखिए जितना कि xerophytes है वो क्या करते हैं, वो डेजर्ट में रहते हैं, और डेजर्ट में क्या होता है, लैक ऑफ वाटर होता है और हाई टेम्परेचर कंडीशन होता है, और इसीलिए क्या है, इन ऑर्डर टू सेव द वाटर दैट इज इनसाइड द प्लांट, वो क्या कहते हैं, वो स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज करके रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन कर देंगे तो क्या होगा, जितना कि वाटर कंटेंट उस प्लांट के अंदर होते हैं तो वो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा, एज ए रिजल्ट वो प्लांट मर जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, वो नाइट टाइम में क्या कहते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, और नाइट टाइम में जब ज़ेरोफाइट्स अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, ठीक है। और वाटर जो कि सॉइल से आते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है, वो ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम बोलते हैं कि मैलिक एसिड, ठीक है। अभी ये जो मैलिक एसिड फॉर्म करेंगे, ये मैलिक एसिड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या होगा, जब दिन के समय जब सनलाइट इस प्लांट के ऊपर पड़ेगा और सनलाइट इस प्लांट के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, अभी जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल कंज्यूम कर लेंगे या फिर ऑब्टेन कर लेंगे, और वो जो मैलिक एसिड यहाँ पे स्टोर क्या गया हुआ था पहले पिछले रात को, सो वो क्या हो गया, वो केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे, और बाद में क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उस ग्लूकोज को क्या होगा, ये प्लांट्स फूड के फॉर्म में यूज करेंगे। अभी देखिए, एट नाइट stomata of xerophytes open and through these tiny pores exchange of gases takes place.
The plant take in carbon dioxide from the atmosphere and through the roots, transport of water takes place from the soil. Thus, prepare an intermediate compound called as malic acid. Or at daytime, the intermediate compound malic acid act upon by the energy absorbed by the chlorophyll and form glucose. ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का लाइफ प्रोसेस का सिर्फ पार्ट 1 मैंने जो दिया है, और इससे रिलेटेड MCQ और आंसर्स भी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड जो कि पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा नेक्स्ट. So I hope you like my video, and if you like my video, please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.